فیصل آباد پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے، بحال ہونے والی چوکیوں میں تعیناتیوں سمیت 325 اہلکاروں کو تبدیل کیا گیا۔ زیادتی کیسز کی تفتیش کے لیے 80 افسران اور اہلکاروں کا رد و بدل۔ 5 انسپیکٹرز کو ٹاؤنز میں اسپیشل تھانوں کی تیاری کے لیے فوکل پرسن تعینات کیا گیا۔ سینکڑوں اہلکاروں کو مختلف تھانوں سے دوسری جگہ تعینات کیا گیا۔ عامر لودھی کو انچارج چوکی 208 اور واجد کھجی کو انچارج چوکی سبزی منڈی لگا دیا گیا۔ سی پی او نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے، بحال ہونے والی چوکیوں میں تعیناتی سمیت 325 اہلکاروں کو تبدیل کیا گیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے طیب مقبول سے۔ طیب اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل فیصل آباد پولیس میں تبادلوں کا بڑا ریلا آ گیا، جس میں بحال ہونے والی چوکیوں میں تعیناتیوں سمیت 325 افسران اور اہلکاروں کی تعیناتیاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ زیادتی کیسز کے تفتیش کے لیے 80 مرد و خواتین افسران و اہلکاروں کی رد و بدل کی گئی ہے۔ ایک سرکل سے دوسرے سرکل میں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح 5 انسپیکٹر کو 5 ٹاؤنوں میں اسپیشل تھانوں کی تیاری کے لیے فوکل پرسن بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں اہلکاروں کو مختلف تھانوں سے دوسرے تھانوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ عامر لودھی کو انچارج 208 چیک چوکی اور واجد کھجی کو انچارج چوکی سبزی منڈی تعینات کیا گیا ہے۔ سی پی فیصل آباد کی جانب سے ان تمام تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اہلکاروں کو فوری طور پر نئی جائے تعیناتی پر حاضری کر کے فرائض کی انجام دہی شروع کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے طیب۔ فیصل آبادیوں کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ، ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 اور 15 کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ ایمرجنسی سروسز پر ہزاروں بوگس کالز کا انکشاف۔ ادھر ایڈیشنل آئی جی ہائی وے پیٹرول نے منصوبوں کی تشہیر کے دوران افسران کی تصاویر لگانے پر پابندی لگا دی۔ آبادی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ شہریوں نے ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 اور 15 کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ ایمرجنسی سروسز پر ہزاروں بوگس کالز کا انکشاف، اداروں کے رسپانس سے وسائل کا ضیاع ہونے لگا۔ ریسکیو 1122 پر رواں سال 1562 اور 15 پر 2372 بوگس کالز کی گئی۔ ریسکیو 1122 پر 1,94,000 غیر متعلقہ کالز کی گئیں۔ بوگس کال سے حقیقی مدد کے طلبگاروں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہونے لگیں۔ پیٹرولنگ پولیس کے منصوبوں کی تشہیر کے دوران افسران کی تصاویر لگانے پر پابندی۔ ای پولیس ایپ سے چیکنگ کے دوران پکڑی جانے والی مسروقہ موٹر سائیکل چھوڑنے پر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی ہائی وے پیٹرول نے افسران کی تصاویر لگانے اور مسروقہ موٹر سائیکل ہر صورت متعلقہ پولیس کے حوالے کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ اے آئی جی کا کہنا تھا کہ مسروقہ موٹر سائیکل ہر صورت متعلقہ پولیس کے سپرد کی جائے۔ فیصل آباد حکام کی غفلت، پولیو ٹیمیں بچوں کے زندگی سے کھیلنے لگیں۔ انسداد پولیو مہم میں ضلع کی 4 یونین کونسلز میں قطرے پلانے کا جعلی اندراج۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ رپورٹ نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ پولیو کے خلاف مشکل اور چیلنجز سے بھرپور طویل جنگ میں انسداد پولیو ٹیموں کی نااہلی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران فیصل آباد کی 4 یونین کونسلز میں بچوں کو قطرے پلانے کا جعلی اندراج۔ 16 ٹیموں نے 492 بچوں کا جعلی اندراج کیا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جاری کردہ رپورٹ نے انسداد پولیو ٹیموں کی کارکردگی کے دعوے ہوا کر دیے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عظیم ارشد کے مطابق یونین کونسل نمبر 187، 103، 13 اور 262 میں پولیو کے قطرے پلائے بغیر اندراج کیا گیا۔ یہ 4 یونین کونسلز تھیں جن میں ہمیں ایشو مطلب اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ جو ٹیلی شیٹ کا ڈیٹا تھا وہ اپ ٹو جو آئی ڈی آئی ایم ایس ہمارا ایک ہے ڈیش بورڈ ہے اس پہ مکمل طور پہ نہیں چڑھا تھا۔ اس میں انہوں نے اپنے طور پہ کہ جی مطلب کوریج کا میں جس طرح کوئی ایشو آ گیا ہے۔ حکام کے مطابق 16 موبائل ٹیموں کے 32 ملازمین نے پولیو قطروں سے متعلق غلط رپورٹ کی۔ غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ 262 ہے، 187 ہے، 103 ہے، 13 ہے۔ یہ 4 یونین کونسلز تھی، ان میں یو سی ایم اوز، ایریا انچارجز جو لگ رہے جو ٹیموں کا ایشو لگ رہا تھا ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے، تو اب اس کے خلاف ہم اس کو محکمہ کارروائی کر رہے ہیں۔ تھرڈ پارٹی نے چیکنگ کے دوران رپورٹ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو بھجوائی تھی۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے ماحول اخبار جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9 کیسز رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی مریضوں کی تعداد 718 ہو گئی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں ڈینگی متاثرین سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق 9 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ 12 مریض علائد اسپتال 1 اور 8 مریض علائد اسپتال 2 میں زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے مچھر سے محفوظ رہنے کے لیے شہریوں سے ڈینگی ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل کی ہے۔
गन्ने के काश्तकारों की जान में जान आ गई। क्रशिंग सीजन 25 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। गन्ने की फी मन कीमत 400 रुपए का नोटिफिकेशन जारी। शुगर मिल्स 25 नवंबर से गन्ना खरीदने समेत क्रशिंग और चीनी बनाने की पाबंद होंगी। गन्ने की क्रैशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। महकमे फूड ने गन्ने की क्रैशिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। शुगर मिल्स को 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने का पाबंद कर दिया गया। शुगर मिल को 25 नवंबर से गन्ने की क्रैशिंग और चीनी बनाने का अमल शुरू करने का पाबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जंग की जेर सदारत क्रैशिंग सीजन के हवाले से इजलास। 25 नवंबर से कबल शुगर मिल्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जिले की 5 शुगर मिल 24 घंटे रेवेन्यू अमला ड्यूटी देगा। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अमले से योमिया बुनियादों पर रिपोर्ट लेंगे। आज हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई है। उसके अंदर हमारे तमाम शुगर मिल एसोसिएशन के लोग आए हैं। सबसे पहले तो जो क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई है ताकि जो हमारे एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट के उनको फॉलो किया जाए। सेकेंडली एक बहुत बड़ा इशू आप सब जानते हैं कि हमें फेस करना पड़ता है जहाँ पे हमारे फार्मर्स ये कहते हैं कि उनको पेमेंट्स नहीं हो रही और ये कंप्लेंट्स हमें डेली बेसिस पे मिल रही होती हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एडीसीआर की सरबराही में मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में आटा मजीद 5 रुपए महंगा 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। 3 हफ्तों में आटे की फी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में महंगाई का तूफान, आटे की कीमत भी आसमान को छूने लगी। बढ़ती महंगाई की फहरिस्त में चक्की का आटा सरे फहरिस्त आ गया। 3 हफ्तों में चक्की का आटा 30 रुपए महंगा हो गया। गुज़िश्ता रोज फिर चक्की का आटा 5 रुपए महंगा होकर 155 से 160 रुपए किलो पर पहुंच गया। चक्की आटा हर गुजरते दिन के साथ महंगा होता जा रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। आवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है। शहरी बिलबिला उठे, बोले दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी अखराजात पूरे नहीं होते। महंगा होता आटा गरीब से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। बेसिकली आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अगर बात की जाए ना कि पहले एक चीज़ 300 की थी, अब वो 350 की होगी। इसी तरह आटे की कीमत, सरकारी कोटे का भी सुना था कि खुलेगा तो आटा मजीद सस्ता होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मजदूर तबका है वो पूरा दिन मजदूरी करता है और रात को आके अगर उसने अपना खाने के लिए कुछ लेगा तो वही चीज़ इतनी महंगी होगी जिसके लिए वो पूरा दिन मजदूरी करता है तो उसका क्या फ़ायदा उसका पूरा दिन काम करने का। घर आके उसको रोटी नहीं खाने को मिलनी। आटा इतना महंगा उसकी पहुँच से दूर हो चुका है। आटा ही उसको मुहैया नहीं किया गया। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई को कंट्रोल और चक्की आटे में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगाई के सताए सार्फिन को लूटना शुरू कर दिया। बाजार में चीनी 135 से 145 रुपए किलो में दस्तियाब है। यूटिलिटी स्टोर्स में 155 रुपए किलो पर पहुंच गई। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई का तूफान। अशिया खुरोनोश की कीमतें मार्केट से भी बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई के सताए सार्फिन में रिलीफ की बजाय मायूसी बांटने लगे। ओपन मार्केट में चीनी 135 से 145 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि गरीब आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी 155 रुपए फी किलो दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने लूट मार मचा रखी है। सस्ते आटे के साथ जबरदस्ती चीनी और दीगर अशिया थमा दी जाती हैं। सार्फिन हुकाम पर बरस पड़े। बाजार के अंदर चीनी तकरीबन फरोख्त हो रही है 130, 25, 30, 35 के, यहाँ 155 दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टोर पे होने का मकसद यही गरीब आदमी का होता है ना, चले यहाँ हमें चीजें सस्ती मिलेंगी। कभी आटे का गट्टू यहाँ 650 रुपए, 750, 700 रुपए का देते हैं। यहाँ चीनी का रेट 155 रुपए है। बाजार में सर मिल रहा है 135, 36, 135, 36। यहाँ पे जो चीनी है वो बिल्कुल बारीक है, सूजी जैसे होती है। नाकिस में जहाँ पे 1 चम्मच डालना होता है वहाँ 5 चम्मच डालने पड़ते हैं। आटे के लिए हम जलील हो जाते हैं। सारा दिन खड़े रहते हैं लाइनों में, आटा नहीं मिलता। जब बारी आती है कहते हैं आटा खत्म हो गया। सार्फिन ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने और वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में सर्दी के आगाज से ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर में गैस की लोड शेडिंग उरूज पर, सार्फिन परेशान। मुकर्रर औकात में भी गैस नहीं आती। 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल हो गया है। खवातीन की दुहाई। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस न होने के बायस आवाम अजाब में मुब्तला हो गई। मुलाजमीन समेत स्कूल के तलबा और तालिबात बगैर नाश्ते स्कूल जाने लगे। खवातीन कहती हैं कि हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस नहीं आती। 2 वक्त की रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। सारा दिन के लिए 2 घंटे के लिए गैस देते हैं, उसमें इतना ज्यादा वो काम होता है, कुछ भी नहीं पकता। आधे बच्चे भूखे रहते आगे, वैसे ही नाश्ते वाले भी वैसे ही जाते हैं बड़ी मुश्किल से। कभी तो बाहर से ला के तो बच्चों को देना पड़ता है।
रोज बरोज बाहर से खाना गरीब इंसान के बस की बात नहीं। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में गुजारा कैसे करेंगे? खवातीन की दुहाई। शहरियों ने हुकूमत और सुई गैस हुकाम से गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फिल्जा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शीर अली कहते हैं सस्ती अशिया फराहम करने वालों को मुल्क बदर किया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। कौम एक बार फिर नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। नवाज शरीफ मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, सीपैक तमाम मंसूबे कामयाबी से जारी थे। हमें गैर मुस्लिम डिक्लेयर करने की कोशिश तक की गई। पाकिस्तान का मुआशी जवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान के ऐसे हालात पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए जो दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान मुआशी कुव्वत ना बन सके। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में ना सिर्फ पाकिस्तान को मुआशी को एक एटमी कुव्वत बनाया, दूसरा वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने मुआशी कुव्वत बनाकर पेश करना चाहते थे। लेकिन चंद ताकतों को ये मुनासिब न लगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के रहनुमा ख्वाजा रिजवान वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए सरगर्म। पीपी 117 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कारकुनों से मुलाकातें। लीगी कारकुनान की जानिब से ख्वाजा रिजवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा रिजवान कहते हैं कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मिशन को कारकुनान तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा होगा। मईशत बहाल होगी। लोगों को कारोबार करने के मौके मिलेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत की काविशें रंग लाने लगीं। झंग में जारी तरक्याती मंसूबे तकमील की जानिब गामजन। ठेकेदारों को दिसंबर तक मंसूबे मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। निगरां वज़ीर आला की कोशिशों से झंग के दरीना मसाइल कम होने लगे। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। जिला इंतजामिया ने ठेकेदारों को मंसूबों की तकमील की डेडलाइन दे दी। लेडीज पार्क धजी रोड 25 दिसंबर और म्यूनिसिपल कमेटी का पार्किंग शेड 15 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का काम 15 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। डिस्पोजल स्टेशन की बहाली पर काम 10 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। शहरियों ने मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन मुकर्रर करने के अमल को खुशाइन करार दे दिया। ये सामने ये पार्क बन रहा है, ये शहर की खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। वज़ीर आला साहब ने कहा अगले महीने तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। और भी बहुत से काम, तरक्की याफ्ता काम जो जंग में पहली दफ़ा शुरू हुए हैं वो भी अगले महीने तक वज़ीर आला ने नोटिस दिया है कि वो मुकम्मल करने हैं। सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 6 मुकामात पर जारी काम को मजीद तेज करना होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। महकमा एक्साइज फैसलाबाद 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में नाकाम। वसूली का हदफ 8 करोड़ 95 लाख रुपए, रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए हो सकी। उधर महकमा एक्साइज कई माह बाद भी मोटरसाइकिलों के कागजात फराहम करने में नाकाम। वार्डन्स चालान करने लगे। मजीद बात करेंगे इस रिपोर्ट में। एक्साइज 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में नाकाम। ऑडिट केसेस से वसूली का हदफ 8 करोड़ 95 लाख रुपए, रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए ही हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स अदायगियां ना करके और हकायक छुपाकर कौमी खजाने को 9 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाया गया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ऑडिट केसेस की रिकवरी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा एक्साइज कई माह बाद भी मोटरसाइकिलों के कागजात फराहम करने में नाकाम। वार्डन्स चालान करने लगे। तांदलियावाला के शहरी परेशान, एक्साइज दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। MRA अल्ताफ चीमा ने कहा कि सिस्टम अपडेट होने में 2 माह लगेंगे। पोस्ट ऑफिस के साथ सिस्टम लिंक का मसला है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में 10 नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कायम। डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर के लिए 30 जून तक 66,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। चीफ कमिश्नर FBR जुबैर बिलाल का कहना था कि फैसलाबाद में 7, जंग में, टोबा और चनियोट में एक दफ्तर बनाया जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शन, गाड़ियों और जायदादों की खरीदो फरोख्त करने वालों का रिकॉर्ड जमा किया जा रहा है। इसके साथ महंगे तालीमी इदारों में जेर तालीम तलबा, हवाई सफर करने वालों, बिजली और गैस के कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं, जिनकी रोशनी में रजिस्टर्ड अफराद का सुराग लगाया जाएगा। अमले की कमी या मामला कुछ और। वासा के करोड़ों रुपए मालियत की मलकियत ज़ाया होने का खदशा। वासा हुकाम शहर के पोश इलाकों में बनी टैंकियों और डिस्पोजल स्टेशन को भूल गए। देखभाल न होने से कीमती मशीनरी और
इमारतें खंडर का मंजर पेश करने लगी। वासा फैसलाबाद की गफलत या मामला कुछ और। करोड़ों रुपए की लागत से साफ पानी के लिए बनी टंकियां तबाह होने लगी। जौहर कॉलोनी में वाकया वाटर टंकी की मोटरें भी गायब हो गईं। 8 कनाल से जायद रकबे पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली टंकी की देखभाल के लिए कोई एहलकार मौजूद नहीं। जौहर कॉलोनी वासा वाटर टंकी के कमरे नशेइयों की आमाजगाह बन गए। अमला की अदम मौजूदगी के बायस नामालूम अफराद खिड़कियां और दरवाजे तक ले उड़े। वाटर सप्लाई की मोटरें और 10 इंच कतर के पाइप भी ना बच सके। अफसरान की अदम तवज्जो के बायस वाटर टैंक का एरिया झाड़ियों में तब्दील हो गया। करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी, दरवाजे, खिड़कियां गायब हो गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। वासा हुक्काम मामले पर मौक़िफ़ देने से भी गुरेजा है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शहरियों के लाइलमी या गैर ज़िम्मेदाराना रवैया नडवाला चौक के अंडरग्राउंड रास्ते का इस्तेमाल न होने के बराबर। शहरी मसरूफ शाहराहों को अबूर करने लगे। ट्रैफिक रवानी मुतासर, हादसात में इजाफे का खतरा बढ़ गया। फैसलाबादियों की जरा सी गफलत जानलेवा बांध सकती है। नाडवाला चौक में जेरे जमीन रोड क्रॉसिंग मौजूद मगर इस्तेमाल ना होने के बराबर। शहरी मसरूफ शराह को अबूर करने लगे। ट्रैफिक रवानी मुतासिर, हादसात में इजाफे का खतरा बढ़ गया। शहरियों ने जेरे जमीन रास्ते के इस्तेमाल ना होने की वजह अदम आगाही को करार दे दिया। बस ये अंडरपास बनाया भी आवाम के लिए गवर्नमेंट ने, पर वो अपनी आसानी के लिए रोड क्रॉस करते हैं, पर ये आसानी नहीं है, बहुत बड़ी उनके लिए काफी खतरे का सबब बन सकता है। ट्रैफिक इतनी होती है, वो अंडरपास के बावजूद यहाँ से गुजरते हैं तो काफी ट्रैफिक होती है, यहाँ उनको नहीं गुजरना चाहिए। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया राहगीरों को जेरे जमीन रास्ता इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।